Hello everyone, Namaskar, welcome to Adhyalay. Today we are going to talk about pressure flow hypothesis, right? And mostly we will be completing this chapter today. Okay? Yes? So last class we were talking about this topic, right? Transpiration and photosynthesis, a compromise. Remember? I had given you few statements, right? Actually, the reason behind transpiration is, what is the reason behind transpiration? What's the reason behind transpiration? Behind this noble cause. What's the reason? They actually want to make the surface cool, right? If the outside environment is super hot, it does what? It transpires, right? As we sweat, they transpire, right? So that was one reason they do transpiration. The main reason is that, okay? So why actually do they do it? The reason you know. Plant let it do it, right? Plants let this transpiration happen, right? Why? There are other reasons also due to which transpiration is happening. Due to that, so many stomatas are there, right? There are so many reasons why stomata is still there. Okay. There is a compromise which plant has done for this transpiration process, because yes, there is loss of water, there is loss of water, but apart from this there are so many other things which we saw yesterday. Yeah, it can take what? It can take water for a higher distance, right? It can transport water, not only water, along with that minerals. So we know that water will be used up in photosynthesis, right? And minerals, it will be given to the developing part of the plant, because the developing part of the plant will require minerals for their growth, right? So this will be required for the growth and development of the plant. Let's say there is a fruit developing, there is a flower developing, there is a bird developing, right? There is a stem branch developing, there is a leaf developing. All the developing part of the plant will require minerals, right? So all the minerals come to them through transpiration pull, right? Dixon and Joly, they had given this theory, no? Although the name of the scientist is not given in is not given in NCERT, but we know that this transpiration pull theory is the best theory, right? To take the water to the upper parts of the plant. So along with water, minerals also come through the xylem. So water is used for photosynthesis and minerals are used by the developing parts of the plant, right? Along with that, you know, it cools the surface by 10 to 15 degree Celsius. If there is any other point which is missed out from NCERT, you can just have a check on it and let me know if you're not understanding anything. Quick, make it quick. Yes, लॉस ऑफ वाटर तो होता है, बट उसके साथ साथ बहुत सारे फायदे होते हैं. इसलिए हमने नहीं, प्लांट्स ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बोला चल यार तू लॉस करा, फायदे भी बहुत देता है तू, तो लेट द ट्रांसपिरेशन हैपन. इसलिए स्टोमेटा को ओपन करते, क्लोज करते, सब करते. ठीक है. नाउ कुछ फैक्टर्स है, देयर आर सम फैक्टर्स जो कि ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं. तो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, सोचो. देयर कैन बी वन फैक्टर और ग्रुप ऑफ फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू एनवायरमेंट, है ना. एनवायरमेंट के कुछ चीज ट्रांसपिरेशन को असर करेंगे कि नहीं. दे विल अफेक्ट ट्रांसपिरेशन, राइट.
अगर टेम्परेचर बाहर का बहुत ज्यादा सुपर हॉट है, ऑब्वियसली आपको अगर गर्मी ज्यादा लगती है, आप स्वेटिंग ज्यादा करते हो ना। सिमिलरली अगर प्लांट को गर्मी ज्यादा लगेगी, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, प्लांट भी ट्रांसपिरेशन ज्यादा करेगा। तो ये जो फैक्टर है वो किसका फैक्टर था? दिस वाज एनवायरमेंटल फैक्टर, राइट? था ना? एनवायरमेंट का टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड लाइट, क्या वो डायरेक्टली रिलेटेड है? सोचो तो, जितना लाइट होगा, सनलाइट होगा, उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा ना। मोर द लाइट मोर द टेम्परेचर। ज्यादा लाइट होगा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा कि नहीं? सोचो, लाइट ज्यादा, धूप ज्यादा, गर्मी ज्यादा, राइट? होगा ना? समझ रहे हो? हवा तेज चलती है जब, मान लो किसी कपड़े को सुखा रहे हो, है ना, यू हैव केप्ट अ क्लॉथ फॉर ड्राइंग, आपने कपड़े को सूखने के लिए छोड़ दिया बाहर, हवा तेज चलेगी, कपड़ा जल्दी सूखेगा, उसका पानी जो है वो जल्दी सूखेगा, या हवा चली नहीं रही है तब ऐसा होगा? ऑब्वियसली जब हैवी विंड चलेंगे तब आपका कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, राइट? तो ये सब क्या है? ये सब किसका लोचा? ये सब एनवायरनमेंट का लोचा है। दिस ऑल आर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, है ना? लाइट हो गया, जितना ज्यादा लाइट दोगे भाई साहब, उतना ट्रांसपिरेशन होगा। जितना टेम्परेचर दोगे, गर्मी होगी, उतना ट्रांसपिरेशन होगा। फिर क्या? विंड स्पीड जितना ज्यादा दोगे, हवा तेज चलेगी, ट्रांसपिरेशन तेज होता चला जाएगा, है ना? यस। ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, ट्रांसपिरेशन के केस में सोचना, हाँ, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो वाटर का कंटेंट क्या है बाहर? वाटर का कंटेंट बाहर क्या है? ज्यादा है ना? ह्यूमिडिटी ज्यादा मतलब ह्यूमिड है, बाहर जो है वाटर का कंटेंट ज्यादा है। तो जब ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा तो ट्रांसपिरेशन, पानी वेपर नहीं बन पाएगा। ट्रांसपिरेशन एक्चुअली आपका क्या होता है? पानी वेपर बन जाना। वो कब होता है? जब टेम्परेचर ज्यादा हो। सिर्फ ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होती है तो ह्यूमिडिटी का मतलब वाटर, मॉइस्चर ज्यादा, तो मॉइस्चर ज्यादा, वाटर पोटेंशियल ज्यादा, तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा उस केस में, राइट? तो यही एक केस है जिसमें अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो ट्रांसपिरेशन आपका थोड़ा स्लो हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाएगा। बाकी सब में क्या होगा? बढ़ेगा। उसी तरीके से मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी से देख कर बताओ, एनसीईआरटी में प्लांट के कुछ कुछ फैक्टर्स है। देयर आर सम फैक्टर्स जो डायरेक्टली प्लांट से रिलेटेड है। सोचो क्या क्या होगा? ट्रांसपिरेशन कैसे होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है ना? इट हैपेंस थ्रू स्टोमेटा, होता है ना स्टोमेटा के थ्रू? बिल्कुल। मान लो मैंने स्टोमेटा का नंबर को कम कर दिया तो ट्रांसपिरेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मान लो मैंने स्टोमेटा के नंबर को बढ़ा दिया, तो स्टोमेटा बढ़ गया है तो ऑलरेडी आपको पता चल गया है कि ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा जितना ज्यादा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन। समझ रहे हो ना? है कि नहीं? लीफ कैसी है आपकी? लीफ एकदम सिकुड़ी हुई सी, श्रिंक की हुई है, या फिर लीफ एकदम फैला हुआ है? अगर लीफ बिल्कुल फैला होगा, एरिया पूरा फैला हुआ, तो उसमें पूरा सन रेज आएंगे, राइट? ऑल द सन रेज विल कम ऑन द लीफ सरफेस, राइट? तो जितना आप बड़ा सरफेस दोगे उतना धूप उस पर आएगा, जितना धूप आएगा उतना ट्रांसपिरेशन होगा, राइट? यस और नो? है ना? तो वो चीज को समझना है कि लीफ कैसा है, ओरिएंटेशन कैसा है, उसका साइज कैसा है, क्या वो ऐसे छोटे से है या बड़ा सा सरफेस है? बड़ा रहेगा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, राइट? इसी तरह एक और स्ट्रक्चर, ऐसे कैनोपाई स्ट्रक्चर लिखा है ना। कैनोपाई स्ट्रक्चर वही होता है कि प्लांट कैसे ओरिएंटेड है, प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। चलो और बताओ, एक और पॉइंट होगा,
परसेंटेज ऑफ स्टोमेटा ओपन, कि स्टोमेटा कितना खुलता है, जो पोर है वो कितना खुल सकता है। मान लो इतना थोड़ा सा ही पोर खुलता हो। अलग अलग तरह के टैप का एग्जाम्पल ले लो। हाँ, टेक एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैप। हर टैप से मान लो अलग अलग होल बनाए गए हैं। किसी टैप से ज्यादा पानी आता है, किसी से कम आता है। क्यों आता है ऐसा? क्योंकि होल का साइज बड़ा छोटा है ना, इसलिए तो पानी एक से ज्यादा आ रही है और एक से पानी कम आ रहा है। समझ रहे हो? तो मैं स्टोमेटा का पोर ऐसा बनाऊंगी कि वो खुलता ही नहीं हो पूरा, वो खुले ही नहीं पूरा। पूरा खुलेगा नहीं तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, पूरा खुलेगा तो ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा होगा। तो परसेंटेज ऑफ कितना स्टोमेटा ओपन है, परसेंटेज ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, कितना स्टोमेटा जो है वो खुलता है, मतलब कितना बड़ा छिद्र है, कितना बड़ा होल है। ठीक है। एक और पॉइंट है, वो क्या है, इसको यहीं पे लिख देती हूँ, वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट। वाटर स्टेटस मतलब समझ आया ना? ऐसी हो गई जैसे हम सब पैसे कमाते हैं, बड़े होते हैं, वी स्टार्ट अर्निंग, है ना? जैसे हमारा पढ़ाई कंप्लीट होगा, हम जॉब करते हैं, हम पैसे कमाते हैं, या बिजनेस करते हैं, पैसे कमाते हैं, राइट? तो हमारा खर्च कैसे होता है? हाउ डू यू स्पेंड योर मनी? आप अपने अर्निंग्स के अकॉर्डिंग खर्च करते हो कि नहीं? आप अपने अर्निंग्स के अकॉर्डिंग खर्च करते हो ना? जितने बोलते हैं ना, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ, बोलते हैं ना, अपना कोट मतलब जितना कपड़े हैं आपके पास उतना ही कट करना चाहिए, राइट? यस और नो? हिंदी में बहुत सारे कहावतें हैं इसके ऊपर, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, है कि नहीं? जितने पैसे हो उतना ही काम करना, जितना चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, राइट? तो वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट वही डिफरेंस है, वही पॉइंट है। जितना पानी किसी प्लांट के पास होगा उतना ही तो खर्च करेगा ना वो, है ना? जितना वो पानी ला पाता है उतना ही वो ट्रांसपिरेशन कर पाएगा। अगर उस प्लांट की एबिलिटी ही नहीं है कि वो ज्यादा पानी को ला पाए, खींच पाए, कहाँ से वो ट्रांसपिरेशन ज्यादा करेगा? जितना ज्यादा वाटर होगा प्लांट में, जितना ज्यादा वो पानी को खींच रहा होगा, उतना ज्यादा वो ट्रांसपिरेशन कर पाएगा। वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, दीज आर द फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड प्लांट वाले फैक्टर। समझ गए सब? समझना है ही नहीं, इजी, राइट? चलो, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमने लाइट, टेम्परेचर, विंड स्पीड में सब में बढ़ता हुआ देखा, ह्यूमिडिटी में थोड़ा घटता हुआ देखा। बाकी आपको सब समझ आ गया, स्टोमेटा, लीफ, कैनोपाई, परसेंटेज कितना ओपन है, वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, है ना? फिक्स हो गया दिमाग में? चलो, अब एक छोटा सा टॉपिक है, वाटर का तो पूरा कहानी खत्म हो चुका है, वी हैव लर्नड अबाउट वाटर का ट्रांसपोर्ट अच्छे से। अब एक छोटी सी कहानी है मिनरल्स के बारे में, जो एक्चुअली हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, मिनरल न्यूट्रिशन। यहाँ पे थोड़ा सा बस बताया है कि मिनरल्स कैसे पहुंचते हैं रूट के जाइलम तक, क्योंकि मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट होता है रूट के थ्रू, होता है ना? रूट के थ्रू वो जाइलम में पहुंचा और जाइलम के थ्रू वो पूरे प्लांट में जाएगा। रूट के जाइलम में पहुंचेगा पहले और जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स दोनों जाता है। इसलिए इस चैप्टर में मिनरल्स का थोड़ा सा डिस्कशन किया गया है, ठीक है? देयर इज अ स्मॉल डिस्कशन डन फॉर मिनरल का ट्रांसपोर्ट, बिकॉज you know that xylem sap consists of water plus minerals. Water plus minerals. Minerals कैसे बनते हैं? How do you get minerals, my dear? कहाँ से आते हैं? खुदा, अल्लाह, प्रभु वो लेकर आते हैं क्या? कौन लाता है ये मिनरल्स? रॉक्स, है ना? रॉक्स टूटते हैं और उससे मिनरल्स आते हैं, राइट? तो रॉक्स के थ्रू आता है तो ये इनऑर्गेनिक होता है ना। देखो मैं क्या बताने वाली हूँ, अभी समझ में आएगा आपको। मिनरल्स रॉक्स से आ रहे हैं ना,
लिविंग ऑर्गेनिज्म से तो नहीं आ रहे, तो मिनरल्स इनऑर्गेनिक होंगे। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब क्या होगा आपका? इनऑर्गेनिक, राइट? ध्यान से सुनना मेरी बात को, इतना तो सबका कॉमन सेंस है, दिस इज कॉमन सेंस कि हाँ, जाइलम किसको लेकर जाएगा ऊपर? इनऑर्गेनिक चीजों को लेकर जाएगा। दिमाग में यही चलता होगा ना कि जाइलम इनऑर्गेनिक, सब इनऑर्गेनिक, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारी चीजों को लेकर जाएगा। दिमाग में यही आएगा किसी भी कॉमन इंसान को, क्योंकि रॉक से आ रहा है सब कुछ। पत्थर जिंदा थोड़ी है, वो तो मरे हुए हैं। मरे हुए मतलब पहले भी वो लिविंग थे ही नहीं, राइट? तो उससे वो इनऑर्गेनिक चीजें आएंगी। लेकिन यहाँ पे ही एक ट्विस्ट है। जब एनसीईआरटी का लाइन पढ़ोगे, वहां लिखा है, ये कभी मत सोचना कि सिर्फ इनऑर्गेनिक चीजें जाती हैं। वहां डायरेक्ट अच्छे से लिखा है कि कुछ कुछ ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन वगैरह भी जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट, क्योंकि हमेशा हमारा कॉमन सेंस यही बोलेगा कि वाटर और मिनरल्स है, मिनरल्स इनऑर्गेनिक होते हैं, तो जाइलम से इनऑर्गेनिक चीजें जाती हैं। ऐसा मत सोचना, गलती हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लो नोट में कि कभी ऐसा मत सोचना कि सिर्फ इनऑर्गेनिक जाता है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी जाते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, अमाइनो एसिड्स, ये सब भी भेजा जाता है जाइलम के थ्रू। चलो, ये तो हम समझ गए, जिससे कि नेगेटिव नहीं हो हमारा एग्जाम में। अब आगे आओ, आखिर ये पहुंच कैसे रहा है रूट के जाइलम तक? हाउ इट इज रीचिंग टिल द जाइलम ऑफ द रूट? तो सुनो, पता है, सबको याद है ना, ई सी ई पी एक्स, क्या है ये? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम, याद है ना सबको? चलो, एपिडर्मल सेल्स में आपको मिनरल्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, पहले से ज्यादा होते हैं, ठीक है? क्योंकि मिनरल्स उनको चाहिए होता है ना, तो पहले से उनके पास मिनरल ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सॉइल में जो मिनरल्स की क्वांटिटी है। एज कंपेयर टू द क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स which are present in the soil, you get more mineral concentration in the root cells. अब कॉमन सेंस लगा लो, अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो कम से ज्यादा की तरफ अगर हमें लेकर जाना है मिनरल्स को, ये एक्टिव होगा या पैसिव होगा? मुझे कम मिनरल की तरफ से ज्यादा मिनरल की तरफ लेकर जाना है, द ट्रांसपोर्ट विल बी एक्टिव और पैसिव? जल्दी बताओ। कम, वेरी गुड, इट विल बी व्हाट? एक्टिव, शाबाश। तो देखो, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स वो ऐसे ही जाएंगे, एक्टिव, ठीक है? बोल सकते हो 98%, ऐसा कोई डेटा भी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट बोला गया है कि मोस्ट ऑफ द मिनरल्स वो कैसे जाते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, ठीक है? एक बात और सुनो, जैसे ही मैंने एक्टिव का नाम लिया है, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? इसको ले जाने के लिए कैरियर की जरूरत होगी कि नहीं? बताओ, मैं नहीं बता रही हूँ। अगर मैं एक्टिव बोलती हूँ, तो इसको कैरियर, पंप का नाम सुना था ना, उसकी जरूरत होगी कि नहीं होगी? बताओ, होगी या नहीं होगी? स्टार्टिंग क्लास में यही सब तो पढ़ाया था ना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बताओ, होगी कि नहीं होगी? यस पे क्लिक करो अगर होगी, नहीं होगी तो नो पे क्लिक करो। कुछ तो बोलो, बोलो। होगी, राइट? हाँ, तो यहाँ पे आपको इतना पता चल गया कि ये इसको जरूरत है ले जाने के लिए। अब सुनो मेरी बात फिर से। एक रीजन तो ये था कि ये कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस था, इसलिए इसको कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ी। एक रीजन ये था। दूसरा रीजन क्या है पता है? ये आयंस होते हैं ना, मिनरल्स आपके आयनिक फॉर्म में होते हैं ना, आयंस होते हैं कि नहीं? जब आयंस होंगे तो आप इसको सेल मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस कराओगे? चार्ज्ड है ना वो,
वो लिपिड से क्रॉस नहीं हो पाएगा, चार्ज्ड है ना, चार्ज्ड, हाइट वो पानी में घुलने वाले हैं, राइट। तो क्या होता है, एक रीजन ये भी है क्योंकि मिनरल्स आयंस होते हैं, आयन के फॉर्म में होते हैं, जैसे फॉस्फेट आयन हो गया, है ना, सल्फेट आयन हो गया, ये सब आयंस है ना। सिंस मिनरल्स आयंस के फॉर्म में होते हैं, एक वजह ये भी है कि इनको हमें क्या करना पड़ेगा, फैसिलिटेटेड तरीके से ले जाना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया था। लेकिन एक और चीज क्लियर हो गई कि ये तो कॉन्सेंट्रेशन का भी डिफरेंस है, तो फैसिलिटेटेड से नहीं हो पाएगा, क्योंकि फैसिलिटेटेड पैसिव था ना, फैसिलिटेटेड पैसिव था, यहाँ पे हाई होना चाहिए था, यहाँ पे लो होना चाहिए था, तो फैसिलिटेटेड क्रॉस हो गया। हमारे पास एक ही रास्ता बचा है कि पंप से लेकर जाओ। समझ रहे हो कुछ, समझ गया ना कॉन्सेप्ट। तो मिनरल यहाँ कम यहाँ ज्यादा, एक्टिवली हम उसको पंप कर देते हैं। सिंस वो आयंस है तो ऑब्वियसली हमें कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो क्रॉस करने ही नहीं देगा, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो मिनरल्स अपना आएंगे आराम से, एक्टिवली ले लिए। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर टेकन एक्टिवली। अब एनसीईआरटी में एक और लाइन दिया है, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर टेकन एक्टिवली एंड सम आर टेकन पैसिवली। समझ गए ना। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ओनली बाय एक्टिव मीन्स, सिर्फ एक्टिव तरीके से मिनरल्स अंदर जाता है, तो बिल्कुल सरासर गलत है। समझ रहे हो, बस इस तरह से क्वेश्चन सेट होते हैं। 98% एक्टिव होता है तो 2% चांस तो है ना जो पैसिव होगा, हो सकता है कहीं कहीं से लीक हो जाए, है ना। जिंदगी का भरोसा नहीं है यहाँ तो, आयंस जा ही सकते हैं, कुछ स्लिप हो ही सकते हैं, राइट। अब इस तरह से धीरे धीरे वो जाएंगे, सब घोड़े बकरी भेड़ की तरह अंदर आ गए, एनर्जी ले लेकर सब आ गए। कहाँ आ गए, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में आ गए। कॉर्टेक्स के बाद भाई साहब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एंडोडर्मिस ने पानी को आने नहीं दिया था, तू क्या है, मिनरल्स को भी नहीं। पानी तो हर जगह से अपना रास्ता ढूंढ लेती है, राइट। जब पानी को नहीं आने दिया तो आयंस क्या चीज, ये बोलेगा सुन रुक, मैं तुझे कंट्रोल करूंगा, मैं तेरा कंट्रोल सेंटर हूं। अब जो भी यहां से क्रॉस करेगा वो वही होगा जिसकी मुझे जरूरत है, जिसकी जरूरत नहीं है वो निकलेगा यहाँ से। दखल अंदाजी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो कैरियर प्रोटीन्स होंगे, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो होंगे, जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, they will control the entry of molecules, they act as control point। जो जो चीजों की जरूरत होगी ना, the molecules, the ions, the minerals which will be required by the plant, बस उसको ही एंडोडर्मिस जाने देगा, बाकी सबको बाय बाय, ऐसा होगा, ठीक है। सो व्हाट एक्ट्स एज द कंट्रोल पॉइंट, एंडोडर्मिस एक्ट्स एज द कंट्रोल पॉइंट। यहां से पेरिसाइकिल को पहुंचा, पेरिसाइकिल से कहाँ पहुंचा, जाइलम में पहुंचा। जैसे ही जाइलम में पहुंचा बहुत सारा सॉल्यूट हो गया, मिनरल्स सॉल्यूट है ना, बहुत सारा सॉल्यूट। एक चीज ध्यान से देखें, यहाँ मिनरल ज्यादा है ना बच्चा पार्टी, मिनरल ज्यादा है कि नहीं, मिनरल ज्यादा है तो सॉल्यूट ज्यादा हुआ कि नहीं, सॉल्यूट ज्यादा है तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है बताओ, सॉल्यूट ज्यादा है तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। इसलिए क्या पढ़ा था, वाटर कैसे आता है, एक्टिव से आता है या पैसिव से आता है, आराम से डिफ्यूजन हो जाता है ना पानी का, क्योंकि मिनरल्स यहाँ ज्यादा था, मतलब सॉल्यूट ज्यादा, मतलब वाटर पोटेंशियल कम। हमें पता है ज्यादा से कम की तरफ पानी आने वाला है अब, क्योंकि वाटर पोटेंशियल कम था यहाँ। तो सॉइल का जो कैपिलरी वाटर है आराम से डिफ्यूजन करके रूट में आ जाता है, पैसिव तरीके से, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। समझ आया कि वाटर का डिफ्यूजन क्यों हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि अंदर जो सेल्स थे उसमें मिनरल ज्यादा रहते हैं, सॉल्यूट ज्यादा रहते हैं, इसलिए वाटर डिफ्यूजन के थ्रू आया, समझे। लेकिन मिनरल्स 98% मोस्ट ऑफ इट एक्टिव तरीके से गया, पहुंच गया कंट्रोल पॉइंट तक। क्या होगा यहाँ, कंट्रोल करेगा, मेरे को ये चाहिए, बस यही चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, ठीक है। फाइनली पहुंच जाएगा जाइलम में। तो ये मिनरल आयंस
के एंट्री से क्या होने वाला है, मिनरल आयंस जहां जहां जाएंगे वहां वहां वाटर आएगा, जहां जहां मिनरल आयंस जाएंगे सॉल्यूट बढ़ेगा, वाटर घटेगा तो वाटर वहां वहां पहुंच जाएगा। तो मिनरल आयंस के जाने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे पानी की एंट्री हो जाती है और इस मिनरल आयन के अंदर जाने की वजह से आपका रूट प्रेशर बन जाता है, सॉल्यूट बहुत ज्यादा, पानी भी अंदर आ चुका है और रूट का प्रेशर नेक्स्ट लेवल पे होता है। भाई साहब ग्रेविटी कुछ नहीं है मेरे लिए, मैं तो ग्रेविटी को क्रॉस करके ऊपर जाने वाला हूँ, और वो रूट प्रेशर उसको ऊपर लेके चला जाता है। समझ गए हो? यस, यहाँ तक समझ गए ना। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, बहुत तरह तरह के मिनरल्स होते हैं प्लांट को जो ज्यादा चाहिए, कुछ होते हैं प्लांट को जो कम चाहिए, मैक्रो और माइक्रो बोलते हैं उसको, वो सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। कुछ और भी कॉन्सेप्ट है, मोबाइल एंड इमोबाइल, थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में उसको डिस्कस किया है, थोड़ा सा किया है। मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं कुछ, कुछ इमोबाइल होते हैं, इसको हमें फिर से पढ़ना है मिनरल न्यूट्रिशन में। देखो, कॉमन सेंस से काम करना, ठीक है। इंसान का अगर कॉमन सेंस काम करे तो बहुत सारी चीजें हो जाती है इजीली। सुनो, मोबाइल का मतलब होता है जो मूव कर सके, है ना, मूवमेंट हो जिसमें। इमोबाइल मतलब इल्ला, नो मूवमेंट, ठीक है। सुनो अब, मान लो ये ना एक छोटा सा फ्रूट है जो डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है, स्टिल डेवलपिंग, जैसे आप अभी डेवलप कर रहे हो, है ना। आपकी संगति जैसी रहेगी, आपके पेरेंट्स आपको जैसे प्यार से रखते हैं, आप डिसिप्लिन, धीरे धीरे वो सारी चीजें हम में आ जाती है, राइट, विथ टाइम, है ना। तो अब इधर देखो, ये अभी डेवलप हो रहा था ये वाला जो फ्रूट है, और ये है ना, प्लांट की खासियत यही है ना, हम में ऐसा नहीं होता है ना कि एक हाथ खराब हो गया टूटता है फिर दूसरा आ जाता है, ऐसा हम में तो नहीं होता। लेकिन प्लांट में तो ऐसा होता है ना, एक लीफ गया दूसरा आता है, एक बुढ़ा होता है मरता है फिर उसी पे ही दूसरे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, राइट। तो ये वाली जो लीफ है ना वो मरने वाली है, इसका अंतिम समय आ गया है, ये एजिंग हो चुका है। इट नोज दैट अब मैं गिर जाऊंगा, अब मैं प्लांट से अलग होने वाला हूं। तो कॉमन सेंस से बताना, यहाँ पे जो भी मिनरल्स होंगे, यहाँ पे जो भी मिनरल्स होंगे, एक्चुअली प्लांट क्या चाहेगा, ये मरने वाला है ना, तो प्लांट क्या चाहेगा, कोई अच्छा खासा प्लांट जो होगा क्या चाहेगा कि ये जैसे प्लांट जाएगा, जैसे ये लीफ जाएगा उसके साथ साथ मिनरल को भी लेकर चला जाएगा ना, यस और नो। तो प्लांट एक्चुअली में चाहेगा क्या आइडियल केस में, कि ये मिनरल को ना मैं कुछ करके इसको भेज दूं ताकि इसको यूज भी हो जाए और मैं तो ऐसे भी मरने वाला हूँ। ऐसा थिंकिंग अगर ह्यूमन बीइंग में हो जाए, इतनी उदारता अगर ह्यूमन बीइंग में आ जाए तो दुनिया सुधर जाए, राइट। लेकिन मरते दम तक इंसान ये सब नहीं करता, राइट, है कि नहीं। तो यहाँ से जब ये मर रहा होता है, प्लांट बहुत अच्छे होते हैं, जिंदगी भर हमें प्रोवाइड ही करते हैं, है ना, ये इसको दे देगा। अगर ये एलिमेंट यहाँ पहुंच जाता है, उस तरह के एलिमेंट को हम मोबाइल एलिमेंट बोलते हैं। मान लो कुछ कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जो चाह के भी मूव नहीं कर सकते, वो चाहते तो बहुत है कि मैं आ जाऊं, चला जाऊं उसके पास, लेकिन वो मूव नहीं कर पाएंगे, उस तरह को क्या बोलेंगे, इमोबाइल, है ना। जैसे कि कैल्शियम, कैल्शियम इमोबाइल होता है, उसको मूव नहीं कर सकते, जहां हो गया फिक्स हो गया वही रहेगा वो, है ना। जैसे हमारी हड्डियां कैल्शियम होती है उसमें, है ना, उसको इधर उधर करोगे तो गया काम। उसी तरह प्लांट में भी है, कैल्शियम जहां फिक्स वहां फिक्स, इमोबाइल है। मोबाइल में बहुत सारे आ जाते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ये सब आपका मोबाइल में एग्जाम्पल दिया, नाना पाटेकर सर, है ना, सर नाना पाटेकर।
किसका किसका फेवरेट है नाना पाटेकर? पता है वो है ना नाना पाटेकर कौन है? खतरनाक एक्टिंग करते हैं वो भी, राइट? चलो तो NPKS याद रहेगा। एक चीज याद रखना, हमें एक कंट्रोवर्सी मिलने वाली है नेक्स्ट चैप्टर में सल्फर से रिलेटेड। इसी से मोबाइल इमोबाइल है, एक कंट्रोवर्सी मिलेगी तब जाके बात करेंगे। ढूंढना आज मिनरल न्यूट्रिशन में मोबाइल इमोबाइल एलिमेंट्स दिया हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर में एक कंट्रोवर्सी मिलेगी। यहाँ पे आपको सल्फर कहाँ डाल रखा है? मोबाइल में ना। मिनरल न्यूट्रिशन जाना, वहां पर देखना सल्फर को कहाँ डाल रखा है। होमवर्क है, कर लोगे ना? यस। चलो, तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं हमारे जो प्लांट में ओल्डर पार्ट से न्यू पार्ट में चले जाते हैं, उसको मोबाइल बोलेंगे। कुछ होते हैं जो ओल्डर पे है तो ओल्डर पे ही रह जाते हैं, कभी भी वो न्यू पे नहीं आ पाते। उस तरह के एलिमेंट को हम इमोबाइल बोलते हैं। बाकी की कहानी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? मिनरल न्यूट्रिशन में अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। क्या है वो? दिमाग में जा रही है ना बातें? प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, इसको हम मास फ्लो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। इसको दिया था मंच ने, है ना? वो सब बहुत बोलते थे ना, सेम पिंच गिव मी अ मंच, राइट? तो ये मंच ने दिया था, इसको मंचेस हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, मंचेस हाइपोथेसिस, ठीक है? मंचेस हाउएवर ये नाम दिया हुआ नहीं है एनसीईआरटी में, तो आपको कम से कम ये दोनों तो याद रखना ही है, प्रेशर फ्लो एंड मास फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक है? चलो, अब इसको सीखने के लिए ना कुछ कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ रियल लाइफ के एग्जाम्पल सीखने पड़ेंगे। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ सोर्स, क्या बोला मैंने? सोर्स। और क्या बोला मैंने? कुछ बोला ही नहीं अभी तक, लिखा है, क्या लिखा है? सिंक। सुनो अब मेरी बात, क्या बोलो, क्या बोलूं? यहीं पे बना देती हूँ। चलो सोर्स मान लो, यहाँ पे मेरे बच्चे कुछ कहाँ के हैं? धारवाड़ के। हाँ, देयर इज अ चाइल्ड फ्रॉम धारवाड़। चलो मान लो ये डी है, ठीक है? स्टाइलिश डी, धारवाड़। देर आर सम किड्स फ्रॉम गुवाहाटी एंड देर आर सम किड्स फ्रॉम भुवनेश्वर, है ना? मान लो पहले धारवाड़ से पास पड़ेगा, शायद भुवनेश्वर पास होगा। तो चलो, धारवाड़ से मेरे को भुवनेश्वर चीजों को पहुंचाना है। कहाँ पहुंचाना है? BBR, BBR ही बोलते हैं ना भुवनेश्वर को? BBSR, BBSR बोलते हैं शायद। यस। चलो, तो धारवाड़ में मैंने कुछ क्या करा, यहाँ के धारवाड़ के पेड़े बहुत फेमस होते हैं ना, धारवाड़ पेड़ा, धारवाड़ पेड़ा बहुत फेमस है, ठीक है? धारवाड़ पेड़ा बहुत फेमस है, और मेरे को धारवाड़ पेड़ा भुवनेश्वर तक पहुंचाना है। कहाँ तक पहुंचाना है? भुवनेश्वर तक। तो सुनो, यहाँ भुवनेश्वर के आदमी ना, द पीपल ऑफ भुवनेश्वर एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि पेड़ा कब आएगा धारवाड़ का, बहुत फेमस है यहाँ का पेड़ा, ठीक है? तो बताओ, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है? सोर्स कौन है? आपको क्या लगता है, बताओ? सोर्स भुवनेश्वर लग रहा है या धारवाड़ लग रहा है? बताओ, क्या लग रहा है? धारवाड़ लग रहा है या भुवनेश्वर लग रहा है सोर्स? जहां बन रहा है वही तो लगेगा ना सोर्स। कहाँ बन रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है आपका धारवाड़ में, तो धारवाड़ इज द सोर्स। समझ गए? अब इसका यूज कहाँ होने वाला है? यूज करो, मुझे इतना पसंद है कि मैं खाती भी हूँ, स्टोर भी करती हूँ, खाती भी हूँ, स्टोर भी करती हूँ। मतलब मुझे अच्छा लगता है आंखें सेकने में कि हाँ मेरे घर पे बहुत सारे जार्स हैं जिसमें पेड़े रखे हैं, और मैं खाती भी हूँ, स्टोर भी करती हूँ, खाती भी हूँ। तो मैं क्या हूँ बताओ? मैं सिंक हूँ या मैं सोर्स हूँ? भुवनेश्वर क्या है? भुवनेश्वर सिंक है। समझे? क्या ये दो चीज समझ आई? सोर्स और सिंक क्या होते हैं? अब सुनो, मुझे धारवाड़ से भुवनेश्वर यहाँ चीजें पहुंचानी है, कैसे पहुंचेगा? मैजिक तो नहीं है ना, टक किया वहां से वहां चला गया।
होगा क्या? नहीं ना, मुझे किसी ना किसी चीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। फ्लाइट की हेल्प ले लो, व्हीकल की हेल्प ले लो, कुछ तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए ना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है ना? टाटा एल्ट्रोस, टाटा एल्ट्रोस से जाएंगे, ठीक है? टाटा एल्ट्रोस, क्रिकेट में अभी वही मिल रहा है ना, टाटा एल्ट्रोस। तो यहाँ पे मेरे को सामान इसमें डालना है और यहाँ पहुंचाना है, टुक टुक टुक, और यहाँ देना है। मैंने गाड़ी यहाँ रख दी सोर्स के पास, अपने आप सब कुछ चला जाएगा गाड़ी में। सोचो तो, क्या खुद ही सब कुछ यहाँ आ जाएगा अंदर? आएगा क्या? नहीं आएगा ना। फिर क्या करने का? क्या करने का? अरे लोड करने का। करना क्या, करना या नहीं? यू हैव टू डू व्हाट? लोडिंग लोडिंग लोडिंग। लोड कर दिया, चलो टुक 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 गाड़ी को बढ़ाओ, पहुंचा दो सिंक के पास। पहुंचा दिया, पहुंच गई ना गाड़ी। चलो अब सिंक के पास गाड़ी पहुंच तो गई, अब इसको मुझे देना है भुवनेश्वर के लोगों को। कैसे दूं? खड़े हो जाऊंगी चला जाएगा क्या? नहीं ना, उसको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू डू व्हाट? अनलोडिंग। चीजों को बाहर उतारिए, अनलोडिंग कीजिए। कर दिया? चलो समझ आया? सोर्स पे क्या होगी? लोडिंग होगी। सिंक पे क्या होगा? अनलोडिंग होगा। अब सुनो मेरी बात, अगर आप लोडिंग कर रहे हो, क्या वो जादू से कर रहे हो? लोडिंग कैसे कर रहे हो? किसी चीज की हेल्प ले रहे हो कि नहीं? कुछ भी हो सकता है वो। लेबर का, लेबर हो सकता है, कुछ लेबर्स होंगे आपके पास जो आपके लिए काम करते हैं। वो लेबर जाते हैं और लोडिंग का काम कर रहे हैं। लेबर चार्ज देना पड़ेगा कि नहीं आपको? लेबर जो लोडिंग कर रहे हैं, आपको लेबर चार्ज देना पड़ेगा उसको। नहीं दोगे तो मानहानि का केस लग जाएगा। राइट? लेबर को पैसे नहीं दोगे, उनके पैसे काट लोगे, बेचारे इतने मेहनत करते हैं, तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे ना। चलो यहाँ पे ना पैसों का जो करेंसी है उसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जो पैसों का करेंसी है उसको क्या मान लेते हैं? हम उसको एनर्जी देंगे। सुन, तुझे पैसा क्यों चाहिए? ताकि तू खाना खाए। खाना क्यों चाहिए? ताकि तुझे एनर्जी मिले। इसीलिए तो। कौन सी एनर्जी? एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हम बोलेंगे कि हम तुझे डायरेक्ट एटीपी देते हैं, तू ले ले, तो हम एटीपी उसको देंगे। सिमिलरली अनलोडिंग में क्या करोगे? अनलोडिंग में आप सिंक को देने वाले जो उसको यूज करेगा, राइट? तो वो भी मैजिक नहीं है, जादू से थोड़ी चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सबके पास। फिर से लेबर को लगाओ, राइट? चीजों को सबको दो, सबको यूज करने के लिए दो। तो क्या करोगे? यहाँ पे इनको पहुंच जाए, इनको पहुंचने के लिए मान लो मैंने इससे चीजें निकाली, निकाल के मुझे इसको पहुंचाना है। कैसे पहुंचाऊंगी? कैसे पहुंचाऊंगी? फाइनली तो मुझे इसको एनर्जी देना ही पड़ेगा ना। चलो अनलोडिंग में हो सकता है कि मैंने पूरा पेड़ा क्या किया? गाड़ी को उल्टा कर दिया। मैंने अनलोडिंग में क्या किया? गाड़ी को उल्टा कर दिया। तो जैसे ही उल्टा किया तो उसमें तो आराम से हो गया, चीजें वो आराम से हो गया, उसमें मुझे एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन वहां से मुझे सबको देना है, बस वहां रखना थोड़ी है ना ऐसे, हाँ हाँ चलो हो गया, नहीं ना। वहां से मुझे सबको प्रसाद देना है, पेड़ा देना है। तो वहां से आपको जब देना है चीजों को, आपको फिर से लेबर की जरूरत पड़ेगी ही, एंड फिर से आप एटीपी दोगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मतलब हमने चीजों को उल्टा कर दिया, सारे पेड़े को यहाँ पे रिलीज कर दिया, सबका सब पेड़ा यहाँ रिलीज हो चुका है। मान लो ये वाला मैंने पैसिव कर दिया, पेड़े को रिलीज मैंने कैसे कर दिया? पैसिव कर दिया। लेकिन ये पेड़ा एक्चुअली में जब लोगों को देना है, मैं कैसे दूंगी? अगर इसको यूज करना है, इन लोगों को अगर पेड़ा यूज करना है, खाना है, तो पैसे देने पड़ेंगे ना खाने के लिए। फ्री फोकट का कुछ नहीं मिलता आजकल, राइट?
दे हैव टू पे ना, इतने दूर से भेजा है इतने मेहनत से करके, इनको खरीदने के लिए पे तो करना पड़ेगा, मुझे चाहिए, दे मुझे तो पैसे दे और ले, तो दे हैव टू पे मनी फॉर दिस, मतलब दे हैव टू गिव एनर्जी फॉर दिस। तो क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। समझ रहे हो? ये पूरी कहानी समझ आ गई। धारवाड़ का पेड़ा हमने सोर्स से लोडिंग करा, लोडिंग में हमें एक्टिवली करना पड़ा, एटीपी डालना पड़ा, फिर उसको वहां लेकर गए जहां पे उसको जरूरत थी, जहां जरूरत थी वहां उल्टा कर दिया, पैसिव कर दिया, अनलोडिंग। लेकिन जो सेल्स उसको यूज करेंगे वो एक्चुअली कैसे यूज करेंगे? एक्टिवली। उसको अंदर कैसे लेंगे अपने? एक्टिवली। या तो वो खा जाएंगे या फिर उसको स्टोर करके रख लेंगे। क्या यहाँ तक समझ आई बात? इज इट क्लियर टिल हियर? जल्दी बताओ, क्लियर है यहाँ तक? क्लिक ऑन यस अगर क्लियर है तो। क्लियर है। चलो, अब हम सारी चीजों को प्लांट से रिलेट करते हैं और देखते हैं सब समझा कि नहीं। प्लांट में खाना कौन बनाता है बताओ? सोर्स कौन है? फोटोसिंथेसिस कौन करता है प्लांट में बताओ? ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, क्या बोलते हो उसको? अरे वाह, किचन ऑफ द प्लांट है ना। किचन, किचन कौन है? लीफ। लीफ में आपको पता ही है कहानी, मीजोफिल सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? इसको और डिटेल में फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, जहां हम अच्छे से सिर्फ वही पढ़ेंगे कि कैसे बनता है खाना, है ना। मीजोफिल सेल के अंदर में आपको क्लोरोप्लास्ट मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मिलता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है, और फिर खाना बनने का प्रोसेस चलता है। वो सब हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ लेंगे। तो लीफ किचन है आपका, तो लीफ सोर्स है ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब लीफ से खाना बनने के बाद हमें क्या करना है? लोडिंग करनी है। खाना बन गया, क्या बना? ग्लूकोज बन गया। बन तो गया ग्लूकोज, लेकिन ट्रांसपोर्ट करना है। हम ट्रांसपोर्ट ऐसा करेंगे कि उसको डैमेज कम हो। तो हम ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं? जब ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है ना, लोडिंग, हम सुक्रोज के फॉर्म में करते हैं। किसके फॉर्म में करते हैं? सुक्रोज के फॉर्म में करते हैं। सुक्रोज के फॉर्म में। और लोडिंग कैसी होगी? एटीपी के फॉर्म, सॉरी, लोडिंग क्यों और कैसे होगी? आपको एक्टिवली करना पड़ेगा, एटीपी देना पड़ेगा। लोडिंग किस पे होगी? ये जो गाड़ी है वो कौन है? कौन है ये गाड़ी? फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे करते हो? जाइलम से या फ्लोएम से? फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे करते हो जल्दी बताओ? फ्लोएम से करते हो ना? फ्लोएम से करते हो। तो फ्लोएम में आपके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, 4 कंपोनेंट पता होगा ना। कंपेनियन सेल, सीड ट्यूब, फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो किससे एक्चुअली वो ट्रांसपोर्ट होता है? फ्लोएम के कौन से कंपोनेंट से वो ट्रांसपोर्ट होता है? सीव ट्यूब से। लेकिन सीव ट्यूब में वो पहुंचता कैसे है? कंपेनियन सेल के थ्रू। किसके थ्रू पहुंचेगा? कंपेनियन सेल के थ्रू सीव ट्यूब में पहुंचता है, क्योंकि सीव ट्यूब का अपना न्यूक्लियस नहीं होता है। सीव ट्यूब का अपना न्यूक्लियस नहीं होता है। मान के चलो इसकी गाड़ी की ड्राइवर जो होती है, ड्राइवर बैठते ही नहीं, तो कंपेनियन सेल्स के थ्रू सीव ट्यूब में उसको भेज दिया जाता है। अब पास में जाइलम होगा, पास में ही क्या पाया जाएगा? जाइलम पाया जाएगा। अब सुनो, इसमें सुक्रोज जैसे ही आएगा, सॉल्यूट आया, सुक्रोज आएगा तो सॉल्यूट आया ना, सॉल्यूट आया तो क्या आया? शुगर। सुक्रोज आया, उससे क्या होगा? सॉल्यूट बढ़ गया। सॉल्यूट बढ़ गया तो वाटर पोटेंशियल कम हो गया ना, सॉल्यूट बढ़ गया ना यहाँ पे। जैसे ही सॉल्यूट बढ़ेगा, जाइलम से फटाफट, जाइलम में पानी बहुत होता है ना, आराम से पानी फ्लो हो रहा है इसमें, जाइलम से फटाफट क्या हो जाएगा? पानी अंदर आ जाएगा। और जैसे ही पानी अंदर आएगा, कौन सा प्रेशर बनेगा? पानी की एंट्री से टर्गर प्रेशर बनेगा ना। बस और क्या,
टर्गर प्रेशर की वजह से वो नीचे की तरफ जाता जाएगा। जिसके पास कम प्रेशर होगा पहुंचता जाएगा पहुंचता जाएगा। कब तक पहुंचेगा? जब तक उसको वो जगह नहीं मिल जाए जहां पे उसको यूज हो जाना है। जैसे कि कोई पत्ता डेवलप हो रहा हो, कोई फ्रूट डेवलप हो रहा हो, कोई ब्रांच डेवलप हो रही हो, रूट को डेवलपमेंट के लिए चाहिए, कोई ऐसी जगह जिसको डेवलपमेंट के लिए चाहिए, वहां पहुंचेगा। उसको सिंक की तलाश थी, मिल गया सिंक। वहां पे अनलोडिंग होगा। कैसे? पहले तो पैसिव होगा, तुरंत निकल जाएगी वो चीजें, लेकिन वो सेल्स जिनको यूज करना है वो उसको अंदर कैसे लेगी? वो एक्टिवली लेगी, है ना? समझ रहे हो? चलो, इसको मैं एक और तरीके से बताती हूँ, मतलब इसी को मैं अच्छे से बता देती हूँ। एक लीफ था, किचन ऑफ द सेल, याद है ना? किचन ऑफ द सेल। यहाँ पे आपका क्या था? मान लो कंपेनियन सेल्स, और यहाँ पे सीव सेल्स। ओके, और यहाँ पे मान लो क्या है? जाइलम, जिसमें पानी फ्लो कर रहा है। समझ रहे हो? चलो, यहां से खाना बन गया, ग्लूकोज। लोडिंग करोगे कंपेनियन सेल्स पे, किस किस फॉर्म में होगा ये? ग्लूकोज को किस फॉर्म में चेंज कर देंगे ये? जल्दी बताओ। सुक्रोज कंपेनियन सेल में पहुंचा, ये कंपेनियन सेल है आपका। कंपेनियन सेल से ये कहां पहुंच जाएगा? सीव सेल में। ये सीव सेल है। क्या नाम है इसका? सीव सेल। ठीक है, सीव सेल्स, सीव ट्यूब बेसिकली। सीव ट्यूब लिखो तो ज्यादा सही होगा। सीव ट्यूब, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है तो सीव ट्यूब बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें सुक्रोज, इसमें जैसे ही सुक्रोज आएगा, यहाँ का वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल कम होने की वजह से क्या होगा? जाइलम में तो खतरनाक तरीके से पानी होता है, पूरा पानी पानी ही है, पानी पानी, है ना? क्या होगा इधर? जाइलम से पानी आ जाएगा इसके अंदर। पानी जैसे ही इसके अंदर आएगा, एंट्री ऑफ वाटर की वजह से इसका टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा। टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा। अब ये दूसरा सीव सेल है, यहाँ पे सीव ट्यूब सेल्स है। ये जो दिख रहा है ना, ये होल्स है। ये जो है वो होल्स है, छिद्र हैं, जिसके थ्रू वो चीजें अंदर आएंगी। और इसको क्या बोलते हैं? सीव प्लेट बोलते हैं। डिफरेंसेस समझ आ रहा है ना? इसको हम सीव प्लेट बोलते हैं। सीव प्लेट, तो सीव प्लेट के थ्रू आपका क्या होगा? सुक्रोज, जिसमें पानी मिक्स है, और सुक्रोज और पानी को क्या बोलोगे? फ्लोएम सैप। सुक्रोज और पानी को क्या बोलोगे? फ्लोएम सैप। तो यहां से आपका हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर आराम से मूवमेंट होता जाएगा। ये पैसिव होगा। ये पैसिव होगा ना, क्योंकि वो हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर की तरफ मूव करता जाएगा करता जाएगा। कब तक करेगा? कब तक करेगा ये मूवमेंट जो होगी हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर की तरफ? ये कब तक होगा? जब तक इसको सिंक नहीं मिल जाएगा। मान लो ये मूव करते करते इसको सिंक मिल गया। जैसे ही सिंक मिलेगा, ये इसको क्या दे दे? अनलोडिंग कर देगा। अनलोडिंग, एंड इसमें भी आपको जब सेल उसको यूज करता है तो सेल को एटीपी देना पड़ता है, राइट? जैसे ही सुक्रोज इसमें चला गया, जैसे ही सुक्रोज इससे बाहर चला गया, सॉल्यूट कम हो गया, मतलब वाटर ज्यादा हो गया। फिर से वाटर वापस किसको चला जाएगा? जाइलम को फिर से चला जाएगा। फिर से ऑस्मोसिस होके जाइलम में पानी वापस चला जाएगा। यहां से आपका सुक्रोज चला जाएगा, ठीक है? और ये सुक्रोज को
अगर सिंक को यूज करना है वो यूज कर लेंगे, अगर उनको स्टोर करना है वो स्टोर कर लेंगे। वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? प्लांट ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? अगर वो स्टोर करेंगे तो किसके फॉर्म में स्टोर करेंगे? स्टार्च के फॉर्म में करेंगे। किसके फॉर्म में करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इज इट क्लियर? बना क्या? ग्लूकोज। ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ? सुक्रोज। स्टोर कैसे होता है? स्टार्च के फॉर्म में। दूसरा, कंपेनियन सेल सीव ट्यूब में क्या सोर्स, जहां पे सोर्स है आपका वहां पे क्या किया जाता है? लोडिंग। ये जो लोडिंग है वो एक्टिव है या इनएक्टिव है? एक्टिव। आपको एटीपी देना पड़ता है। कहां पहुंचता है ये? सीव ट्यूब सेल्स में। सीव ट्यूब सेल्स में जैसे ही सुक्रोज जाता है, पानी जाइलम से अंदर आ जाता है, ऑस्मोसिस हो जाता है। एंट्री ऑफ वाटर की वजह से उसका टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है। फिर मूवमेंट आराम से सीव ट्यूब में होता है, हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर में। फिर जैसे ही सिंक, जहाँ पे डेवलपिंग पार्ट ऑफ द प्लांट है, जिसको जरूरत है भोजन की, सिंक में सुक्रोज जाएगा। पहले तो वो पैसिवली निकलेगा, पहले वो पैसिवली निकल जाएगा, लेकिन जब उसको सेल लेता है तो उसको एक्टिवली लेता है एनर्जी देके। जैसे ही इससे सुक्रोज निकल गया, सॉल्यूट कम हो गया, पानी ज्यादा, और ये पानी फिर से ऑस्मोसिस से जाइलम में चला जाता है। ठीक है? और इस तरह से यहाँ पे अनलोडिंग हो गया आपका। इसको यूज करना है तो यूज कर लेगा, अगर ज्यादा हो गया है तो स्टोर कर लेगा। स्टोर करेगा किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। स्टोर करेगा किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। कोई भी डाउट है यहाँ तक? देयर इज एनी डाउट? ये डायग्राम है, एक बार देख लो। लीफ में खाना बना, खाना बन के कहाँ गया? सीव ट्यूब में गया। जैसे ही शुगर उसमें जाता है, वाटर फॉलो करता है ऑस्मोसिस से, कहाँ से? जाइलम के थ्रू चला जाता है, जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। हर एक सीव ट्यूब से वो सीव प्लेट के थ्रू आता जाएगा, आता जाएगा। कब तक आएगा? मान लो रूट को जरूरत है, रूट को जरूरत है तो सीव ट्यूब से शुगर बाहर आ जाएगा, ताकि रूट अपना मेटाबॉलिज्म वगैरह अपना प्रोसेस कर ले। जैसे ही शुगर बाहर आ जाएगा, वाटर फिर से बाहर निकल जाएगा और जाइलम को चला जाएगा। ये रूट के लिए था। हो सकता है कोई स्टेम है, टिप ऑफ द स्टेम, जो डेवलप कर रहा था, जिसको शुगर की जरूरत है, फिर ये कहाँ आएगा? यहाँ पहुंचेगा, फिर इसको देगा, है ना? जैसे ही इसको दे देगा, क्या होगा? फिर से शुगर इससे निकल गया, वाटर ज्यादा होगा, वाटर फिर से जाइलम को पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? तो शुगर सोल्यूशन कैसे फ्लो होता है? हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर की तरफ। कुछ समझ आया? यस? तो दिस इज प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस और मंचेस हाइपोथेसिस और मास फ्लो हाइपोथेसिस। एक लास्ट टॉपिक है, दैट इज गर्डलिंग। दैट इज गर्डलिंग, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। आप इसको खुद से पढ़ो एक बार। लास्ट पैराग्राफ लेफ्ट पेज में होगा, लेफ्ट साइड ऊपर में गर्डलिंग के बारे में लिखा है। पढ़ना, आखिर क्यों किया, इससे क्या मिला। ठीक है? अगर कोई डाउट्स है तो पूछ लो। इफ देयर इज एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, अदरवाइज थैंक यू सो मच। एंड इफ यू फेल्ट दैट लाइक एक्चुअल में आपके दिमाग में कुछ गया है ना, तो आप लाइक तो जरूर पढ़ रहे हो, बट स्टिल डू लाइक, है ना? कम से कम लाइक कर देना कि हाँ समझा आपको, कमेंट कर देना। ठीक है? ओके, चलो फिर, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हम गर्डलिंग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में और मिनरल न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है?